हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In the last video, we have discussed about the work done in unit 4, that is work energy power. In work energy power, now we will discuss about energy. Our next topic is energy. Energy. Capacity of doing work. Capacity of doing work is always equal to work. Always energy. और फिजिक्स के अंदर हम जितना वर्क करेंगे उतना हमारा काम भी हो जाएगा. मीन्स एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन, और वी कैन से वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी. In energy there are many types of energy. For example, nuclear energy means that comes from the nucleus, that is from nuclear fission or fusion, जो टाइप की होती थी पढ़ी हुई आपने. Wind energy, that is due to flow of air. Many types of energy. Our main topic, our main energy in our syllabus, that is mechanical energy. And in mechanical energy there are two types of energy. Means first is kinetic energy and second one is potential energy. Kinetic energy we will represent by K and potential energy we will represent by U. Kinetic energy and potential energy. And potential, we will discuss about potential energy now. Then we will discuss about the kinetic energy. Firstly we will discuss about the potential energy. What is potential energy? Potential energy. And potential energy that is represented by E. What is potential energy? It is the energy which is due to rest. कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसके अंदर पोटेंशियल मींस एट और ड्यू टू पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी. From a definite reference point. For example, potential energy of that is gravitational potential energy, means due to gravitational force. Potential energy, elastic potential energy due to elastic energy. Elastic potential energy due to force which is called restoring force. That is opposite to the deforming force. We have discussed about the force restoring and deforming force. Many types of potential energy are there. Potential energy due to definite charges, particular position of charges. अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं प्लस चार्जेस, वो रिपेल करेंगे. रिपेल करने की वजह से उनको डेफिनेट पोजीशन के ऊपर रोक रखा है. That is the energy stored in the body. That is potential energy. Electrical potential या electrostatic या electrical potential energy. Many types of potential energy are there. Magnetic energy की फॉर्म में भी एक potential energy होती है. Potential energy in the form of magnet, वहाँ भी एक potential energy आएगी. Means there are many type of potential energy. And in our syllabus there is first is gravitational potential energy. Gravitational potential energy due to gravitational force. What is gravitational potential energy? Consider a body of mass m
that is the ground, that is the earth, that is the reference point. अर्थ वी हैव टेकन, हमें लिया है पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस पॉइंट से एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो हम बॉडी रखेंगे। मैंने यहां से कोई m मास की बॉडी की, m मास की बॉडी की पेन मैंने अर्थ से उठा के इस h हाइट के ऊपर रख दिया, तो ये h हाइट के ऊपर एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, कहां से? ग्राउंड से। लेकिन मैं इसी को छत के ऊपर लेके चला जाऊंगा तो छत के ऊपर हमारा छत एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, वहां से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। Means there are many types, there will be a reference point. What is potential gravitational potential energy? Consider a body of mass m is placed at the height h from the ground. From the ground we have taken ground. और अगर h हाइट के मास के m मास की बॉडी को h हाइट के ऊपर जाके रखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करेगा, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इस mg के अगेंस्ट हमें काम करना पड़े, इस वेट ऑफ द बॉडी के अगेंस्ट, इस वेट को हम ऊपर लेके गए, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और वही डन दैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। जो हमने काम करा है दैट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मींस potential energy that is equal to work done against the gravitational force, that is the work done, that is the gravitational potential energy, that is equal to U is equal to W, that is equal to work done, force into displacement, force into displacement, displacement is h from the height. Then what is the force? Force is equal to mc, that is the weight of the body, into h, that is the gravitational potential energy that is stored. This work done is stored in the form of potential energy. This मैंने इस m मास की बॉडी को यहां से यहां h हाइट पे रख दिया, मैंने जो वर्क किया that stored in the form of potential energy. नीचे की तरफ यहां इसके अंदर potential energy स्टोर है, रेस्ट पे रख रखी। जैसे छोड़ दूंगा नीचे की तरफ जाएगी, this potential energy converted into motion के अंदर आ जाएगी। मोशन वाली एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, सेकंड फॉर्म जो थी मैकेनिकल एनर्जी की सेकंड टाइप थी। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू एनर्जी का कंजर्वेशन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी h की बात करूं, h हाइट की बात करूं, अगर मान लिया हम अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो हमारे पैर तो ग्राउंड के ऊपर है, मींस हमारे पैरों की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 0। हमारा हेड है वो किसी हाइट के ऊपर है, 1 मीटर 2 मीटर जितने भी हाइट के ऊपर, तो हेड की तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, पैरों के ऊपर जाएंगे 0। देन हाउ वी विल फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी? या तो आप एवरेज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पैरों की 0, हेड की mgh, h हाइट के ऊपर हेड है अपन, डिवाइड बाय 2 थी, एवरेज कैसे निकालते हो? फाइनल अपॉन प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज मींस दैट इज इक्वल टू mgh बाय 2। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बात करें तो आप m को कहां मान सकते हो? m हमारी बॉडी एक पॉइंट मास नहीं, पॉइंट मास बॉडी होती बिल्कुल छोटी बॉडी एज कंपेयर टू हाइट, लेकिन हमारी पॉइंट मास बॉडी नहीं। अब इसको पॉइंट मास मानने के लिए हम क्या ले लेंगे? सेंटर ऑफ मास ले लेंगे। अगली यूनिट के अंदर आएगा एक सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास का आप हाइट निकाल लो, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। अगले चैप्टर में बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, अगले यूनिट्स के अंदर आएंगे। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपके पास है mgh। सेकंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी that is also represented by elastic means this is the energy stored due to particular position of a spring or a rubber। स्प्रिंग को हमने पकड़ के खींच लिया, खींचा है, हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है, दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। स्प्रिंग को वापस अपनी पोजीशन पे लेके आएगा, जैसे छोड़ेंगे वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स।
और एक पर्टिकुलर लिमिट तक डिफॉर्मिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग एक पर्टिकुलर लिमिट तक, दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज द अप्लाइड फोर्स, दैट इज द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग, जो वापस रिस्टोर करे, वापस लेके आए उसको अपनी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। देन व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, और हमें जो वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो भी करेंगे, डिस्टेंस कितनी एक्सपेंड की है स्प्रिंग या रबड़ को, कितना एक्सपेंड करा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। जैसे छोड़ेंगे वापस भागेगी, दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। Then how we will calculate the elastic potential energy? The restoring force, let us represent by small f or f, small f, restoring force. That is always directly proportional to displacement of the spring or rubber. Displacement, that is the original position of the spring. That is the original spring. Let m mass is connected to this spring, placed on a horizontal surface. फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन के अगेंस्ट एक और वर्क हो सकता है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बट हमने यहाँ पे ली है स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। एम मास की हमने इसको खींच के और एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे ले आए एम मास को। मींस दिस रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस खींचने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्स डिस्प्लेसमेंट इन द कंप्रेशन और एक्सपेंशन। कंप्रेस भी कर सकते हो, छोड़ोगे वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, कंप्रेशन और एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट इज आल्सो नोन एज हुक्स लॉ। आगे बात करेंगे साइंस एंड लिमिट के अंदर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू kx, वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट 10th मिनट में दोबारा बात करेंगे। और स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। किस चीज की बनी हुई, लोहे की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है। एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज, देखो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट उधर करोगे, रिस्टोरिंग फोर्स इधर इस डायरेक्शन के अंदर, मींस ऑलवेज नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है रिस्टोरिंग और डिस्प्लेसमेंट। आप उधर धकेलोगे, रिस्टोरिंग फोर्स को इधर खींचेगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही माइनस में लगा दिया। एंड अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इस स्प्रिंग को खींचने के लिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। कम से कम रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल लगाना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स, तब जाके कोई स्प्रिंग एक्सपेंड या कंप्रेस होगी, अदरवाइज होगी नहीं। पुट कर दो, देन वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितने डिस्प्लेस करी है x, and this force is not constant. This force is not constant. This is variable force, and this variable force is, that is equal to f is equal to minus kx. That is equal to this force, this restoring force is नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। फोर्स कांस्टेंट, अगर आप फोर्स धीरे धीरे स्प्रिंग को खींचते जाएंगे, जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे आपके पास अप्लाइड फोर्स है वो बढ़ेगा। शुरू में आप खींचो धीरे, कम फोर्स से एक्सपेंड हो जाएगी, दोबारा खींचोगे फिर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मींस वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स से वर्क डन का फॉर्मूला होता है, पहले आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस dx। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिख दो, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज अपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, मींस f की वैल्यू यहां से रखोगे माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू kx इनटू dx। देन टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वर्क डन, इंटीग्रेट कर दो, मींस टोटल वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द स्प्रिंग थ्रू डिस्टेंस x, that is stored in the form of elastic potential energy, that is equal to
k कांस्टेंट है, बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, x dx का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। दिस वर्क डन is stored in the form of elastic potential energy of the spring that is equal to half kx square. Elastic potential energy of the spring half kx square. These are the two potential energy of the two types of potential energy. First is gravitational potential energy and second one is elastic potential energy. Thanks.